بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما تو رہے الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا فاپس وعذبہم میں عذاب دوں گا انہیں عذاباً عذاب شدیدہ بہت سخت فی الدنیا دنیا میں بھی والآخرہ اور آخرت میں بھی وما اور نہیں ہوگا لہم ان کے لیے من ناصرین کوئی مددگار واما اور رہے الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے وعملوا اور انہوں نے عمل کیے الصالحات نیک فاپس یوفیہم وہ پورا پورا دے گا انہیں اجورہم ان کا اجر واللہ اور اللہ تعالیٰ لا نہیں یحب پسند کرتا محبت کرتا الظالمین ظالموں سے فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا ہے میں انہیں دنیا اور آخرت میں بہت سخت عذاب دوں گا وما لهم من ناصرین اور ان کا کوئی بھی یار و مددگار نہیں ہوگا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے انہیں ان کا پورا پورا اجر اللہ دے گا واللہ لا يحب الظالمین اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 56 ہے الحمدللہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر کرم اور احسان ہے کہ ہم روزانہ اللہ رب العزت کے میسیج کو سنتے ہیں کہ اللہ پاک اس آیت مبارکہ کے اندر ہم سے کیا بات کہہ رہے ہیں اللہ پاک ہم سے کیا کہہ رہے ہیں کیسے کہہ رہے ہیں کرنا کیا ہے کیا کرنے سے ہم جو ہے نا ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو سکتی ہے اور کن کاموں کو چھوڑنے سے ہم اللہ کی ناراضگی سے بچ سکتے ہیں تفسیری نقطہ نظر سے تو دونوں آیات بہت ہی آسان ہیں لیکن عمل کے اعتبار سے بہت ہی مشکل ہیں بہت سی چھوٹی چھوٹی آیات ہیں لیکن ان کے اندر اللہ رب العزت نے پورے دین کا خلاصہ بیان کر دیا ہے اللہ پاک فرما رہے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ جو شخص کفر کرے گا اس کو میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے کفر سے بچائے کفر کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی ذات کا انکار کرنا ایمان نہ لانا تو اب الحمدللہ جو صحیح وہ ہے اس کے اعتبار سے تو ہم لوگوں کا ایمان ہے اور اللہ رب العزت کی ذات پر پختہ ایمان ہے کہ اللہ کی ذات ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے قرآن پہ ایمان ہے لیکن ہمارے اعمال ہمارے ایمان سے میچ نہیں کرتے ہمارے اعمال جو ہے وہ ایمان کے مطابق نہیں ہوتے اکثر یعنی کہ بھئی ہمیں یقین ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے ہر وقت دیکھ رہی ہے اللہ رب العزت ہمارے رب ہیں انہوں نے ہمیں پالا بنایا ہمیں وہیں جانا ہے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے لیکن ہمارے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے ہم نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے ہم نے کبھی اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے یہ دنیا اس کی راحتیں اس کا سکون اس کا عیش اس کے آرام کے لیے ہم لوگ بڑے بڑے گناہ بھی کر لیتے ہیں رب کریم کو بڑا سا ناراض بھی کر لیتے ہیں تو اس وجہ سے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم لوگوں کو ایمان تو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ جس رب نے ہمیں ایمان دی ہے ہمیں مسلمان بنایا ہے لیکن اب ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو اپنے اعمال کو بھی اپنے ایمان کے مطابق درست کریں مضبوط کریں صحیح کر سکیں فرمایا کہ میں جو بھی کفر کرے گا اسے سخت ترین عذاب دوں گا اور اسی طرح سے جو بے عملی کرتا ہے اس کو بھی اللہ کی طرف سے سخت عذاب کا سامنا ہوگا وما لهم من ناصرین ان کفار کا کوئی مددگار نہیں ہوگا وہاں قیامت کے دن مسلمانوں کا بھی کوئی مددگار ہاں وہ مسلمان جنہوں نے عمل کی کوشش
कोशिश की और तकवा इख्तियार करने की कोशिश की, रब करीम को माना, आका दो जहां के तरीकों पे चले, उनके लिए तो कोई सहारा होगा। आका दो जहां उनकी सिफारिश करेंगे, कुरान करेगा, और भी बहुत सारे अल्लाह ताला उनके लिए असबाब बना लेंगे। लेकिन वमा लहुम मिन नासिरीन, जो कुफर करने वाले हैं या कुफरिया काम करने वाले हैं, शिरकिया काम करने वाले हैं, उनका कोई मददगार नहीं होगा। तो मेरी प्यारी बहनों, हम हर इंसान की फिक्र करने वाले बन जाएं। हमारे आका कुफार की फिक्र करते थे कि किस तरीके से वो लोग दीन में दाखिल हो जाएं। हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, ना हम करते हैं। हमें कोई मिल भी जाए तो हम कभी उसको दीन की दावत नहीं देंगे, क्योंकि हमारे अपने अमाल, अपने हमारे तरीकाकार हमारे इस्लाम से बिल्कुल ही अपोजिट होता है। लेकिन हम ये दुआ तो कर सकते हैं कि रब करीम पूरी इंसानियत को हदायत दे, पूरी दुनिया को हदायत दे के इस्लाम को नाफिज फरमा, हर एक को उसको आग से, उस जहन्नम से, अपने सख्त अजाब से बचा दे और सबका मददगार पैदा कर दे। हम सबको ऐसे अमाल करने की तौफीक अता फरमा कि आका दो जहां हमारे वहां मददगार हो जाएं, हमारे सिफारशी हो जाएं, ये कुरान हमारे सिफारशी हो जाए, हमारे अमाल, अपने अमाल इतने अच्छे हो जाएं, हम जहां ज़मीन पे चल फिर रहे हैं, जहां हम उठते बैठे सोते हैं, ये जगह हमारे लिए जो है वो अल्लाह के यहाँ सिफारशी बन जाएं कि रब करीम इस बंदे ने कोशिश की थी, इसको माफ़ कर दे। फिर बहुत ही खूबसूरत और प्यारी आयत मुबारक जिसमें अल्लाह पाक फिर फरमा रहे हैं 757 में, वअम्मल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति फयुवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम। पहले कुफर की बात की, डर लग गया कुफर से और इंसान के अंदर एक थोड़ा सा खौफ पैदा हो जाता कि रब करीम हमें इससे बचा दे। अब फौरन अल्लाह पाक ने कह दिया, अगर तुम ईमान वाले हो, अमल वाले हो, तो तुम्हारा तो अंजाम ये नहीं है, तुम्हारा अंजाम क्या है? अल्लाह ताला मुझे और आप सबको इनमें से बनाए। फरमाया जो ईमान वाले हैं और जो अमल सालेह वाले, अमिल सालिह, आमनो ईमान वाले, जो लोग, जिन लोग ईमान लाए, यानी पुख्ता यकीन। फिर ये यकीन नहीं होगा कि मुश्किल आ गई तो कहीं और चले गए, ज्यादा खुशी हो गई तो फिर भी आप इसे बार नहीं। खुशी में, गम में, दुख में, दर्द में, हर हाल में ईमान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के ऊपर, यकीन अल्लाह के ऊपर। तरीका जब यकीन होगा, ईमान होगा, तो तरीका भी अल्लाह का, चाहे वो हमारी खुशियां हों फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात के मुताबिक चलें, और हमारे गम और दुख आ जाए, हमारी फोतगियां आए या हमारी शादियां आए, हम अल्लाह के तरीके के मुताबिक चलें, तो वो हमारा ईमान होगा। वामिलुस्सॉलिहाती, और जिन्होंने नेक अमाल किया, अमिलुस्सॉलिहात के अंदर हर वो काम जो अच्छा है। और मेरी प्यारी बहनों, आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, हमें खुद ब खुद पता चल जाता है कि कौन कौन से काम अच्छे हैं। बाज दफा हम खामखा पूछने के वो एक वो करते हैं कि ये चीज देखें, हमें खुद भी क्लियर होता है, हमें अल्लाह पाक की तरफ से हमारा एक ज़मीर होता है हमारे अंदर, जो हमें बता रहा होता है कि ये काम सही है, ये गलत है, ये जो तुम कर रहे हो ये ठीक है, और ये जो तुम कर रहे हो गलत है। कहीं ना कहीं से, इवन के नमाज में अगर हमसे कोई चीज हो रही हो, हमें थोड़ा सा कहीं अंदर से ज़मीर हमारे को चुके लगा रहा होता है कि नहीं नहीं ये गलत हो रहा है, कहीं हम किसी के साथ ज्यादती कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो हमें पता है कि अमीलुस्सालिहात क्या है, नेक अमाल क्या है। तो मेरी प्यारी बहनों, आप और मैं, हम सब कुरान पढ़ने वाले लोग हैं, हम अमीलुस्सालिहात करने की कोशिश करें। हर वो अमल सुबह से लेकर शाम तक हम देखें कि हमारे अमाल कैसे हैं। क्या अमील सालिहात के अंदर न सिर्फ नेक अमाल हैं, बल्कि बुराइयों को छोड़ना भी है। हम अपने 24 घंटों का जायजा लें कि 24 घंटे के अंदर हमारी नमाज कितनी देर की होती है, हम कुरान करीम को कितना वक्त देते हैं, तलावत कितनी देर करते हैं, हमारी तस्बीहात कितनी देर होती हैं, हम अल्लाह की मखलूक को खुश करने के लिए कितनी देर के लिए काम करते हैं, हम कौन कौन से अच्छे काम है जो हम करते हैं, और हमारे काम, हमारा वक्त जो है वो लगवियात में, फजूलियात में, जिनका कोई मकसद नहीं है, खेल कूद में और ड्रामे टीवी देखने में और ऐसी ऐसी चीज़ों में हमारा वक्त गुजरा, जिनका कोई मकसद सिवाय इसके कि जितनी देर हम उस काम में शामिल होते हैं, वो काम हमें लगता है कि हमें फ़ायदा दे रहा है, हमें खुशी मिल रही होती है, सुकून मिलता है, लेकिन उसका ताल्लुक बाद वाले वक्त के साथ नहीं होता। लेकिन अगर हम कोई अच्छा काम कर लें, उस वक्त हमें सुकून नहीं भी मिल रहा हो, बज़ाहिर हमें उठ के नमाज पढ़ना टाइम के ऊपर मुश्किल लग रहा हो, तिलावत करना मुश्किल लग रहा हो, जिक्र करना, खैरात करना, किसी की मदद करना, सब काम मुश्किल काम है, लेकिन इनका असर देर पा होता है। जो अच्छाइयाँ करते हुए, हमारी नेकियां करते हुए, बुराइयों से बचते हुए हमें तकलीफ होती है, लेकिन उसका असर क़यामत के दिन तक होगा, उसका युवफ़ीहिम, पूरा पूरा अजर अल्लाह पाक हमें देंगे। लेकिन जो अच्छाइयाँ, वो जो सुकून वाले काम है, बज़ाहिर खेल कूद तमाशे, इस तरह के काम उस वक्त तो हमें सुकून दे रहे होते हैं, लेकिन बाद में अफसोस और हसरत के सिवा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उनसे हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। वो लम्हात हमने
वो लम्हा तो गुजरना ही था। कभी कभी जिंदगी में इतनी मुश्किलात आ जाती हैं, लगता है वक्त रुक गया है, लेकिन वो वक्त भी गुजर जाता है। लिहाजा जो वक्त हम ज़हनी जिस्मानी सुकून के लिए हम फजूलियात में लगाते हैं, वो वक्त भी गुजर जाएगा। लेकिन क्या ही अच्छा हो जाए कि वो वक्त हमारा कीमती बन जाए। तो क्या अल्लाह पाक फरमा रहे, जिसने भी नेक अमाल किया अल्लाह पाक उनको युवफ़ीहिम उजूरहुम, वफ़ा युवफ़ी वफ़ा से है, जिस तरह कोई वफादार होता है पूरी पूरी वफा करता है, इस तरह अल्लाह ताला कोई कमी बेशी, जरा कमी बेशी नहीं करेंगे। ईमान और अमिल सालिहात का पूरा पूरा बदला देंगे। उस वक्त जब है वमा लहुम मिन नासिरीन होगा, जब कुफार का कोई मददगार नहीं होगा, अल्लाह पाक छोटे 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 जर्रा बराबर भी नेकियों को ज़ाया नहीं करेंगे और उनका पूरा पूरा बदला देंगे। तो हमने अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाना है, सुबह से शाम, दिन से रात हम काम करते हैं, घर के काम करें, उसके साथ अल्लाह का जिक्र कर लें, जो काम भी करें हम उसको पॉजिटिव वे में लेके और खिदमत के जज्बे के साथ करके, अब सफाइयाँ हमने करनी है, उनको निस्फ़ ईमान समझ के हम कर लें। हमने घर वालों को खाना बनाना और खिदमत करनी है हस्बैंड की, ये सारा कुछ हमने करना है, उसको भी अजर समझ के, अल्लाह का हुक्म समझ के करें, तो फिर क्या होगा, वो भी अमील सालिहात होंगे। अमील सालिहात की तशरीह की ज़रूरत ही नहीं है मेरी प्यारी बहनों, आप सब जानती हैं कि अमील सालिहात क्या हैं। तो जब हम कर लेंगे तो अल्लाह का पूरा अजर देंगे। वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ज़ालिमों को पसंद नहीं करता, अल्लाह जालिमों से मोहब्बत नहीं करता, अल्लाह जालिमों से खुश नहीं होता। ये जालिम कौन लोग हैं? ये सबसे बड़े जालिम तो ये हैं, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। तो ये शिर्क क्या कौन सा है? सिर्फ काफिर हो जाना, सिर्फ बुतों की पूजा करना नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात में, अल्लाह की सिफात में किसी किस्म का शिर्क करना। इवन के हम किसी इंसान के लिए अगर नमाज पढ़ें कि कोई देख रहा है तो हम लंबी नमाज नहीं तो शार्ट, या कोई कोई देख रहा है नमाज पढ़े, नहीं देख रहा ना पढ़े, इस तरह का कोई काम भी हम कर लें, वो भी शिर्क में आ जाता है। दिखावा करना, रियाकारी करना, कोई भी ऐसा काम करना, अल्लाह के लिए जो काम करना था वो अगर हम मखलूक के लिए कर लेंगे तो फिर वो भी खुदा न खास्ता जुल्म के अंदर आ जाएगा। जुल्म की डेफिनेशन हमेशा से यही करती हैं फौजिया जी, कि जुल्म क्या है कि किसी चीज़ की जो जो चीज़ उसकी थी, उसके यानी जिस चीज़ का जितना हक था वो अदा ना करना। हम समझते हैं जुल्म का मतलब बहुत मार कुटाई करना, बहुत दूसरे के साथ ज्यादतियाँ करना, यही जुल्म है। नहीं, जिसका जो हक था, उस्ताद का जो हक है, अगर हमने उसको नहीं दिया, उसमें कमी बेशी की, ये जुल्म है। वालदेन का जो हक, माँ का जो हक था नहीं दिया, वो भी जुल्म है। बाप का जो हक था वो हमने नहीं दिया, वो भी जुल्म है। वालदेन का क्या हक है सबसे बड़ा? उनकी फर्माबरदारी करना, उनकी बात मानना और उनके बारे में अच्छे जज्बात रखना। वालदेन कभी कभी लगता है हमें वालदेन ज्यादतियां कर रहे हैं, वालदेन हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, वालदेन बहुत बुरे भी। बाज लोग बच्चे बच्चे की जब एज होती है हमारी, तो हमें समझ नहीं आती, हमें लगता है कि ये ज्यादती हो रही है हमारे साथ, हमारे वालिद हमारी वालदा हमें मना कर रहे हैं, ये काम ना करो, ये ना करो, ये ना करो। तो हम इताअत वालदेन की करना, अगर इताअत उनका हमारा फर्ज है, अगर उसमें कमी बेशी करेंगे तो ये जुल्म है। ला युहिब्बु, याद रखिए, अल्लाह मोहब्बत नहीं करेगा फिर जो कोई जुल्म करेगा। उस्ताद हैं तो शागिर्दों के हुकूक हैं, उनको पूरा अदा ना करना। किसी इदारे के ऑफिसर हैं तो उस अदारे वालों का हक है हमारे ऊपर, घर वाले घर की खातून है तो उस घर के अफराद का हक है। यानी हर एक का हमारे ऊपर जो हक है वो हम अदा कर दें। जब हम अपने हक अदा करने वाले हो जाएंगे ना, हुकूक व फ़राइज़ की बड़ी बहस चलती है, हमारे ये हुकूक है, ये हुकूक है। जब हम अपने फ़राइज़ पूरे करेंगे तो अल्लाह पाक हमारे हुकूक पूरे करवाने का इंतज़ाम अल्लाह पाक फरमाएंगे। सो ला युहिब्बु, कितनी बड़ी तंबीह है कि अल्लाह पसंद ही नहीं करता, अल्लाह मोहब्बत ही नहीं करता। तो मेरी प्यारी बहनों, हर वो काम हमने छोड़ना है जो जुल्म की कैटेगरी में आए, जिससे अल्लाह मोहब्बत ना करे। अगर अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की नफ़रत हमें मिल गई, अल्लाह की मोहब्बत ना मिली, तो मेरी प्यारी बहनों बड़े खसारे का सौदा हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।